सीधा आपको लेकर चलेंगे जहां पर एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अश्नवी वैष्णव क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। विषयों को एड्रेस करके आगे बढ़ेंगे। 10 number. Sir, good afternoon. Shishir from Hindu Business Line. Sir, I have two questions. Can we expect a 2029 election on this one nation, one election? I'm talking about the Lok Sabha election. And my second question is, what would be the economic implication of this decision? There will be good positive implication, economic implication because of this decision. And we will create consensus, and the entire legal processes, once they are completed, then we can say which will be the appointed date. I'm sure you would have read the report. Report is available on the website, and anybody can download it. It's a public document. So once you read it, you will come to know that there is an appointed date. So once that process completes, process gets initiated, then we will be able to tell which will be the first election. 80. Sir, this is Payal from Network 18. So just yesterday, the Home Minister spoke about this decision yesterday when he was sitting in the briefing with you, saying it's going to be implemented before the next term. So do we have a realistic date in mind? And secondly, I mean, you know, when you're talking about the allies are, you are saying, were on board, but the Congress party and the other opposition parties say that this is the impact of 240 in 2024 elections, and that's the reason that you're bringing this in a hurry. One nation, one election was a thought which was announced well before the general elections of 2024. So anybody who's saying that it because of the election results have actually given us a historic mandate, and that's why we are able to take such historic decisions. And that's why there is a clear thought process that for country's growth, for meeting the aspirations of our people, for making sure that we become a developed country by 2047, whatever needs to be done will be done. And this is one of those major decisions where, as I said, Sarva Sammati se. Sarva Sammati means everybody is on board. 77. Sir, this is Damini from the Indian Express. Will these constitutional amendments be brought in the next session of Parliament? And are you confident of getting them passed in the current Parliament? As I said, we will start the discussions across the country, various forums. We'll request constitutional experts, we'll request the academia, we'll request citizen groups, we'll request everybody to start discussing this, and then we will create consensus around it, then we'll bring the necessary laws. 4. सर नमस्कार, आई एम दीपक फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। आई आस्क इन हिंदी। कल हमने देखा कि जो होम मिनिस्टर थे, ही एंड यू बोथ सेड हाउ गवर्नमेंट टुक अ हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ एबोलिशिंग MEP. It happened just before the Maharashtra and Haryana election. Why I am asking it? Now once you have elections at different time, government has enough elbow room to take corrective steps, which you took. So how are you looking at if one nation, one election comes? Governments will have no others, they will have no room to take any corrective step. So which one is better? I absolutely, मैं एकदम क्लियरली आपको कहना चाहूँगा, हमारी सरकार कंसल्टेटिव प्रोसेस में विश्वास करती है, जीवंत सरकार है। वी बिलीव इन कंटिन्यूसली टेकिंग फीडबैक। मैंने आपको कई एग्जांपल्स पहले भी दिए हैं। वी बिलीव दैट वी मस्ट टेक पीपल्स ओपिनियन इन माइंड into consideration and then decide. So we definitely believe in taking the people along. So I don't think election result should be seen as a barometer of people's feedback. 121. सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे, न्यूज़ इंडिया से। मेरा सवाल ये है कि अभी कैबिनेट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अनएक्सेप्टेबल है और ये असंभव है। तो क्या लगता है, क्या विपक्ष के सहयोग के बिना सरकार इसको लागू कर सकेगी या कैसे ये रास्ता बनाएंगे आप? देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज़्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट।
176. सर अश्विनी जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर ही है। आपने कहा कि सर्वसम्मति से, हमने देखा सर्वसम्मति पहले वक्फ बिल पर भी था कैबिनेट में, लेकिन जिस तरह के आपके एलाइज बाद में इसके प्रति अपनी अलग अलग पार्टी लाइन पर चले गए, क्या ये सर्वसम्मति अगले शीतकालीन सत्र में जब भी ये बिल आएगा दिखाई देगा? और दूसरा, आपने कहा कि हम पूरे प्रोसेस में कंसल्ट करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बड़ी हाई लेवल कमेटी बनी जिसका फाइंडिंग आपने एक्सेप्ट किया आज ही, उसने भी लंबी चौड़ी चर्चा की थी, तो अब फिर और क्या जरूरत है? क्योंकि सभी पार्टियों ने, 47 पार्टियों ने अपने रिएक्शन दिया था, 15 छोड़कर बाकी सब ने एक्सेप्ट कर लिया था। आपको लगता है कि इतने दिनों में और बदलाव हो सकता है? चर्चा देखो, कोई भी जब प्रिंसिपल्स डिसाइड होते हैं, अब उन प्रिंसिपल्स को आगे प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है, प्रोग्राम्स को आगे इम्प्लीमेंटेशन में लाना होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही डिटेल्ड कंसल्टेशन के साथ करेंगे। जो आपने कहा हाई लेवल कमेटी के दौरान भी कंसल्टेशंस हुए थे, यस कंसल्टेशंस हुए, बहुत एक्सटेंसिव हुए, और उसके कारण जो प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए, वो प्रिंसिपल्स को आगे इम्प्लीमेंट करना है। उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए मान लीजिए कॉमन इलेक्टोरल रोल, एक पूरे देश में एक कॉमन इलेक्शन की जो रोल है वो होना चाहिए, वोटर लिस्ट होनी चाहिए। तो वो वोटर लिस्ट राज्य सरकार के सहयोग के से ही बन पाएगी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों मिलके ही उसको कर पाएंगे ना। तो उसके लिए फिर डिटेल डिस्कशन चाहिए, उसके लिए राज्य सरकारों के साथ चर्चा चाहिए, दोनों कमीशंस के आपस में डिस्कशंस चाहिए। फिर फेजिंग आउट करनी है, तो फेजिंग आउट किस तरह से होगी, फिर लॉ एंड ऑर्डर का जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट फोर्स है वो देखना होगा, कितना ईवीएम्स चाहिएगा, कितना उसका कितना प्रोक्योरमेंट करना होगा, ये सारी चीज़ों में बहुत बड़ा डिस्कशन चाहिए। 278. सभी का। सर सागर हूँ पीटीआई से। मेरा सवाल चंद्रयान 4 मिशन के बारे में है। आपको नंबर आपने कहा माइक आपको there are some changes in the Chandrayaan 4 mission. I would like the ISRO chairman to highlight the changes that are in the Chandrayaan 4 mission, and how will it actually function, and also do we have a specific timeline for the Bharat Antariksh Station, the first module to be operational? See, you would have seen Chandrayaan 4 mission is primarily targeted to demonstrate technology to go to moon and come back. The coming back is the highlight of it. Landing there has already been demonstrated in Chandrayaan 3. So that is what is brought in here. But if you have to send a man later in 2040 as envisioned by our Honorable Prime Minister, we need to have confidence on the technology. So primarily Chandrayaan 4 is for that purpose, how to do it at a low cost. So if you have to send man right now, we can't do that. We need to go step by step. So that is primarily the Chandrayaan 4 mission goal. Now you talked about the Bharati Antariksha Station. Yes, there is a definite timeline. The goal given to us by Honorable Prime Minister is that we must have a full-fledged station by 2035. So our plan here is to launch the first module of the Bharati Antariksha Station called BAS-1 by 2028. But for doing that, we have limitations of the launch vehicle capability. So what we can do with the current rocket is what we have proposed in this part of the program. And you have seen that NGLV coming up later. When it comes up, the remaining part of the space station will be built. So the timeline is accordingly worked out. First unit will go in 2028. Remaining part will go in the process, will reach up to 2035. We'll have full-fledged station. Thank you. 211. सर मैं कमलेश हूँ लाइव टाइम से। सर मेरा सवाल है सर, कब तक इम्प्लीमेंट करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, और दूसरा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, आपको 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से जुटाएंगे आप? मैंने कहा आपसे अब विस्तृत चर्चा करेंगे और बहुत ही विस्तृत चर्चा करके कंसेंसस डेवलप करेंगे, बिल्डअप करेंगे, देश में इस टर्म में लागू करेंगे, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी ने कल आप सबके सामने कहा है। 271. So, I am Shahid Abbas from Informis Media.
My question also pertains to one nation, one election. Sir, I want to know about the, will you kindly enlighten us about the practicality aspect of this decision? Let me finish. Say, if a state assembly is elected. नहीं सुनो सुनो मेरी बात सुनो, एक काम करो आप सबके सब, प्लीज एक बार डाउनलोड करिए रिपोर्ट को और रिपोर्ट को एक बार सब पढ़िए। सुनो सुनो देखो, रिपोर्ट के कंटेंट्स के बारे में एक बार आप सब पढ़ लीजिए, डिटेल में डिस्कशन के कई मौके आएंगे, उसमें करेंगे डिटेल। I am on a point, sir. I am on a point. I want to know in case if a government, state government is dissolves after an election of 1 year. So for the remaining 4 years, whether it will be kept into suspended animation or whether there will be a precedent rule or how will you will, I mean, इसलिए कह रहा हूँ रिपोर्ट एक बार पढ़ लो, रिपोर्ट में लिखा है, वो भी लिखा है। हेलो सर, मैं आशुतोष हूँ, नव भारत छत्तीसगढ़ उड़ीसा से। सर, ट्रिपल आईसी जो है वो कब तक मूर्त रूप लेगा और इसमें किस तरीके के कोर्सेज होंगे? अभी तक जो टेक्नोलॉजी की सर पढ़ाई होती है, जैसे आपने प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात की, बहुत महंगी है, तो क्या इन सब चीज़ों पर भी कुछ डिस्कशन हुआ है या इस पर कुछ बातचीत हुई है? बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है, इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन हुआ है, साथ ही साथ जो इसमें टेक्नोलॉजी के लीडर्स हैं उनके साथ भी बात हुआ है और फोकस इसमें रहेगा ऐसे कोर्सेज को क्रिएट करना जो आज की जो क्रिएटर इकोनॉमी है, जिसमें एनिमेशन है, वीडियो है, बहुत सारे जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स की इकोनॉमी है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की दुनिया में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उन सब पे फोकस करके कोर्सेज क्रिएट किए जाएंगे। और नेचुरली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसलिए अफोर्डेबल प्राइस इसमें रहेगा ही रहेगा। इंडस्ट्री की तरफ से जो सपोर्ट है वो कोर्स के कंटेंट को डिसाइड करने में। मान लीजिए जैसे मैंने गतिशक्ति विश्वविद्यालय का एक एग्जांपल देना आपको उचित समझूंगा यहाँ पे, एयरबस 15,000 इंजीनियर्स जो एविएशन एरोनॉटिकल पे फोकस्ड हो, एयरबस ने एक कोर्स सजेस्ट किया, उसके हिसाब से हमने वो कोर्स गतिशक्ति विश्वविद्यालय जो कि ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस्ड यूनिवर्सिटी है उसमें लागू किया। तो इतना अच्छा एक कोर्स बन पड़ा जिस कोर्स से एयरबस विल बी हायरिंग 15,000 इंजीनियर्स हु आर ट्रेन्ड इन दिस। तो इसमें भी, इस इंस्टीट्यूट में भी ये फोकस रहेगा कि किस तरह से जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जैसे कि जो भी बच्चे इसमें, विशेषकर क्रिएटिव दुनिया में जाने के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा मैथ और साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएटिविटी एक अलग लेवल की चीज़ है। तो उस क्रिएटिविटी से संबंधित बच्चों को, कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इससे मिलेगी और ये आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट बनेगा। जितना IITs हैं वैसे ही इंपॉर्टेंट ये एक इंस्टीट्यूट बनेगा। 260 वीडियो सर्विसेज से वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेके संसद के शीतकालीन सत्र में क्या कोई विधेयक लाया जा सकता है? रिपीट मत करो ना यार, एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो सबके सब। भाई मैंने कहा ना, आप चर्चा करेंगे, चर्चा से कंसेंसस डेवलप होगा, फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आएगा आपके सामने स्टेप बाय स्टेप। दूसरा सवाल, गगनयान की तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसको, और ये एक्सपेंडेड गगनयान है, दोनों में क्या खासियत है? गगनयान प्रोग्राम अभी चल रही है, हमारा पहला मिशन जो एस्ट्रोनॉट के साथ होगा उसका शेड्यूल भी दिया है। फॉर यही प्रोग्राम जो अनाउंस अब किया है कि गगनयान प्रोग्राम का गोल्स में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी डाला। अब तो इस मिशन का नंबर तो सिर्फ एक था पहले, अब नाउ 5 मिशंस करना है, हमको लॉन्च करना है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, वहाँ हम डॉकिंग और हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लेकर वहाँ डॉकिंग करना है। ये सभी मिशन उसमें डाला है और इसका स्कोप एक्सपेंड किया है। क्वेश्चन हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू। तो आप केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सुन रहे थे। आज कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें तमाम प्रस्ताव पेश किए गए और कुछ अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है कैबिनेट में। और इसी के साथ
बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी सरकार, यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। इस दौरान तमाम जानकारी साझा करते हुए अश्वनी वैष्णव नजर आए और इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन्हें मंजूरी दी गई है कैबिनेट में। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, अश्वनी वैष्णव ने कहा। बार बार चुनाव होने से खर्च अधिक होता है, इसी वजह से ये प्रस्ताव पेश किया गया है। संसद से पास होते ही बन जाएगा कानून।